اوكي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم میرے ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ رب ذوالجلال ہم سب کو وہ مبارک مہینہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ مہینہ عطا کیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اس ماہ میں جس طرح رہنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس طرح رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں: اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. ہم نے تم پر کدو کس پر؟ ہم نے تم پر کدو ہم سب پر اللہ نے کیا کیا؟ روزوں کو فرض کیا. اللہ نے پورے صحت مند مرد عورت، بالغ مرد عورت پر روزوں کو فرض کیا ہے. جیسا کہ اول لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ روزوں کی وجہ سے تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. روزوں کی برکت سے جھوٹ کہنا چھوڑ دو گے، روزوں کی برکت سے دھوکہ دینا چھوڑ دو گے، روزوں کی برکت سے گلا شکوہ چاڑی چغلی چھوڑ دو گے، روزوں کی برکت سے لڑائی جھگڑا سب چھوڑ دو گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ہم پر روزوں کو فرض کیے ہیں. یہ روزے رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے ماں بہنوں، رمضان آتی بعض مرد و خواتین اپنے آپ کو بیماروں میں شامل کر لیتی. میری طبیعت ایسی ہے، میری طبیعت ویسی ہے، میں روزہ نہیں رہ سکتی، خود فیصلہ کر لیتی ہیں. نہیں، بالکل غلط ہے. روزہ آتا صحت مند بنانے کے لیے. روزہ آتا، رمضان آتا ہے صحت مند بنانے کے لیے. تم لاکھ روپے خرچ کر کر وہ صحت حاصل نہیں کر سکتے جبکہ رمضان کے روزے رکھ کر وہ صحت حاصل کر سکتے ہیں. رمضان کے روزوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھا ہے. اسی لیے اصحاب کرام بھوکے بھوکے کیا کرتے تھے؟ روزے رکھا کرتے تھے. لیکن اللہ آج ہمیں کھلا رہا ہے، سحری میں خوب کھلا رہا ہے، افطار میں خوب کھلا رہا ہے. درمیان میں تھوڑی دیر اللہ کے لیے بھوکے رہنا کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے ماں و بہنوں، ہم سب کے آقا سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نور نظر لخت جگر، اللہ پاک ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. میرے ماں و بہنوں، وہ پیاری بیٹی کہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھا کرتے تھے صرف دو چیزوں کے ساتھ. کتنے چیزوں کے ساتھ؟ دو چیزوں کے ساتھ. وہ دو چیزیں بھی کیا تھے؟ کالے چیز تھے. ایک کھجور، دوسرا پانی. ایک کھجور، دوسرا پانی. افطار کریں گے تو انہی دو چیزوں سے. سحری کریں گے بھی تو دو چیزوں سے. سحری بھی کھجور پانی، افطار بھی سے کیا؟ کھجور پانی. میرے ماں بہنوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو اللہ ہمیں کیا کیا کھلا رہا ہے. اللہ کیسے کیسے کھلا رہا ہے. دال، دنیا، مرغ و مسالے، معلوم نہیں مزیدار کھلا رہا ہے. وہ کھا کر ایک مہینہ روزے رکھ لیں گے تو رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے.
جو माँ बहनें रोज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, अल्लाह पाक और भी रखने की तौफीक अता फरमाएं। जो माँ बहनें रोज़ा नहीं ही हिम्मत कर कर सहरी करो, उसके बाद अल्लाह की मदद देखो किस तरह नाजिल होती है। मेरे यार मेरे माँ बहनों, ये रमज़ान का महीना आता है, हमें क्या है, आमाल करने का शौक़ सिखाने के लिए आता है, इबादत करने का शौक़ सिखाने के लिए आता है। हमारे अकाबिर हजरात यानी असहाब इकराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ऐसा था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे माँ बहनों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को अल्लाह के नबी से क्या रिश्ता था? ज़रा बोलो माँ, ज़रा बोलो, मालूम है इस वाले? बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का रिश्ता अल्लाह के नबी से क्या था? क्या था? बोलो ज़रा, क्या भाषा भाई? हाँ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बीबी हैं, उनकी बीबी ही। मेरे माँ बहनों, अल्लाह के नबी के बीबी बच्चे कितने ही, वो याद रखना भी इबादत है, वो याद रखना भी इबादत है। याद रखो कितने बेटियां ही, उनके नाम याद रखो, कितने बेटे ही, उनका नाम याद रखो, कितने बीबियां ही, उनके नाम याद रखो। वो नाम जहन में रहेंगे तो इंशाअल्लाह उस बरकत से घरों में अंदर बरकत आएगी। मियाँ बीबी के दरमियान में लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं होंगे, इसलिए कि प्यारे लोगों के नाम हमारे जहन में। आज दुनिया वालों के नाम हमारे जहन में आ गए, दुनिया वाले हीरो हीरोइनों के, क्रिकेट खिलाड़ियों के, उनके नाम सब आगे, अच्छे लोगों के नाम हम सब भूल गए। इतना बड़ा मजमा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का रिश्ता नबी से क्या है, कोई कहने को तैयार नहीं। मेरे माँ बहनों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडली बीबी हैं। वो फरमाते हैं रमज़ान का महीना आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह इबादत में लग जाते थे, इस तरह इबादत में लग जाते थे, रमज़ान के ख़त्म होने तक बिस्तर पर नहीं आते थे। रमज़ान के ख़त्म होने तक सुकून से सोते नहीं थे। मेरे माँ बहनों, जैसा रमज़ान आया, आज बराबर हमें ऐसे छी, पान खाने वाले अब भी डाड़ को पान रख ले को छी, हाँ, गुटखा खाने वाले अब भी गुटखा खा ले को छी, क्या करने वाले करते छी। रमज़ान आया है, रमज़ान के महीने में खाना पीना हराम है, रमज़ान के महीने में खाना पीना हराम है। हिम्मत करो, बुज़दिल मत बनो। सुबह में पेट भर खा लिए, शाम में फिर पेट भर अल्लाह खिलाएगा। थोड़ी देर दरमियान में भूखे रहने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा? रहेंगे मेरे माँ बहनों रोज़ा? कौन कौन रहते हैं ज़रा बोलो। इंशाअल्लाह सब रहेंगे ना, इंशाअल्लाह सब हम रोज़े रहेंगे। अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। और इसके साथ साथ मेरे माँ बहनों, रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, रमज़ान का महीना कुरान का भी महीना है। किसका महीना? कुरान का भी महीना है। कुरान जानते हो ना, अल्लाह का कलाम जो हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है। ये कुरान का महीना भी रमज़ान का महीना है, इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया है। अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल किया है। इससे पता चलता रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं और कुरान का भी महीना है। क्या महीना है? कुरान का महीना है। आज दीन का इल्म ना रहने की वजह से कुरान की उतनी अहमियत नहीं हमारे पास, जितनी कि 11 मजालिस को तो सब दिन मालूम था, 12 मजालिस को तो सबको मालूम था, हाँ, सीयर को तो सबको मालूम था। मेरे माँ बहनों, किताबों का सरदार कुरान पाक है। किताबों का सरदार क्या है? जोर से बोलो जरा। कुरान पाक है। कुरान को उठाओ, हाथों में ताकत आएगी, सीने को लगाओ, सीने में कुव्वत आएगी, आंखों को लगाओ, आंखों में क्या रोशनी बढ़ेगी। अरे इसको क्या करो, प्यार मोहब्बत से चूम लो, इसकी तमाम बरकतें हमारे अंदर उतरेंगे। कुरान को मोहब्बत से देखना भी इबादत है, कुरान को मोहब्बत से देखना भी इबादत है। मेरे माँ बहनों, रमज़ान कुरान का भी महीना है, रमज़ान कुरान का भी महीना है। अरे जिसको अल्लाह का डर था, जिसको अल्लाह से मोहब्बत थी, जो अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे, वो लोग रमज़ान को किस तरह गुजारते थे जानते हो? हज़रत उलमा इकराम फरमाते हैं, हमारे सैयदना शेख क्या है, इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनके ताबे हम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनका रमज़ान कैसे गुजरता था? उलमा फरमाते हैं रमज़ान के जाने से पहले 60 पर 3 कुरान या 60 पर 1 कुरान पढ़ लिया करते थे। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। कितने कुरान माँ 60 पर 3 या 60 पर 1 बात बोलते हैं। बाज़ हजरात 60 पर 1 बोलती हैं, बाज़ हजरात 60 पर 3 बोलते हैं। अरे सहरी के बाद से लेकर इफ्तार तक मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते थे। तरावी में ये क्या है, रोजाना 1 पारा या 3 पारा पढ़ लेते थे और तरावी के बाद से फिर सहरी तक ये कुरान पढ़ लिया करते थे। समझ में मेरी माँ वो समझ में बात। हमारे अकाबिर जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले, इनका इश्क अल्लाह के साथ ऐसे था, रमज़ान जाने से पहले 60 से ज़ायद कुरान पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज रमज़ान हम पर भी आ रहा है मेरे माँ बहनों, कुरान पढ़ने की दूर की बात, कुरान को थैली में से निकालें कि नहीं कि बाहर, अभी थैली में से बाहर निकालें कि नहीं कि मजबूत बन को रख डाले थी, मजबूत बन को रख डाले थी। याद रखो, आप अपने घर वालों से कहो रब्ब ज़ल जलाल क़यामत के दिन 2 चीज़ों को आंखें देंगे। 2 चीज़ों को क्या है, आंखें देंगे। एक कुरान को आंखें देंगे अल्लाह ताला, दूसरे मसाजिद को आंखें देंगे अल्लाह ताला। कल क़यामत के दिन ये कुरान पूरे मैदान हशर में लोगों को देखकर पहचानेगा। आपको पढ़ने वालों को पहचान कर अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह ये तेरा बंदा मुझे पढ़ा करता था, आज मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, आज मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, तो इसकी मग़फ़िरत कर दे। कौन सिफारिश करने का? कुरान। देखिए वो कुरान को तुम्हें देखती हैं क्या मेरी माँ बहनों? टीवी को देखे तो खुद कुरान देखती हैं क्या? जरा बोलो जरा। टीवी को, फोन को देखे तो खुद देखती हैं। देख बड़ी माँ हाथ हलाती है, नहीं कर को कितनी देखेंगी उन्होंने। हाँ बड़ी माँ करंट बोलती हैं तुम्हें। अरे कुरान टीवी को देखने के वक्त में से अरे पाओ टाइम तो निकालो कुरान पढ़ने के लिए। रमजान का महीना है, टीवी के मुंह पे कपड़ा मार दो, अब तुझे बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दो। मेरे माँ बहनों, जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो बड़े मुबारक शख्सियतें हैं। उठाओ कुरान, उठाओ, अलिफ लाम मीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू करो। मेरे माँ बहनों, जिन को कुरान पढ़ना आता है वो पढ़ना शुरू करो, और जिनको पढ़ना नहीं आता उनको भी क्या है, मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे बाद नमाज मगरिब या बाद ज़ोहर, बाद असर, किसी एक नमाज के बाद तुम कुरान को ले लो, लेकर क्या उसको क्या बोसा दो, आंखों को लगाओ, सीने से लगाओ, खोल कर क्या करो, शहादत की उंगली कुरान पे रखकर ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये भी मेरे अल्लाह का हुक्म है, कहते कहते पूरे कुरान के ऊपर उंगली क्या करो, पूरे कुरान के ऊपर उंगली फेरो। हो सकता है इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा देगा, वरना कल क़यामत के दिन कुरान तुम्हारी सिफारिश करने के लिए तैयार हो जाएगा। करेंगे काम? करेंगे क्या माँ? इंशाअल्लाह तो बोलो। हाँ, पढ़ने वाले जरूर पढ़ो, जिसको पढ़ना नहीं आता है वह कम अज कम कुरान के ऊपर अंगली से फेरो। या अल्लाह मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, बड़ी बदनसीब हूँ, तेरा कुरान पढ़ना मुझे नहीं आ रहा है। रमज़ान इस तरह गुजारने के बाद तुम्हें मेरे माओ बहनों, हमारी बड़ी उम्र हो गई समझकर महरूम होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे गली में कोई कुरान पढ़ने वाले खातून है, उनके पास जाओ, अलिफ बा ही तुम शुरू करो। अलिफ बा पढ़ने के खातिर 10-12 साल के होना कोई ज़रूरी नहीं, 7-8 साल के कोई ज़रूरी नहीं। अल्लाह चाहे तो 60-70 साल के ख़वातीन भी क्यों ना हो, 60-70 बरस के औरत भी क्यों ना हो, जाओ अलिफ बा तुम शुरू करो। शुरू करना हमारा काम है। अलिफ बा ता था, अगर इसके पूरे सीखने से पहले अल्लाह ना करे किसी की मौत आ जाए, अल्लाह ताला सीखने की बरकत से कल उलमा हुफ्फाज के साथ हमें उठाएगा। कल क्या है, अरे शुरू करे ही हम, अलिफ बा पढ़ना शुरू कर लिए ही हम, इसके दरमियान में अगर अल्लाह हमको अपने पास बुला लिया, अल्लाह सब जानता है। मेरे माँ बहनों, अल्लाह ताला हाफिजों के साथ, आलिमों के साथ, हुफ्फाज के साथ, क्या हाफिज आलिम को तो मर्दमानिश नहीं, हाफिज औरतें भी हैं, हाफिज आलिम भी, आलिम औरतें भी हैं, मुफ्ती औरतें भी हैं। अल्लाह पाक उनके साथ यानी सहाबिया औरतों के साथ, वलियों औरतों के साथ तुम्हें उठाएगा क़यामत के दिन। ये इरादा करो, अलिफ बा सीखने के लिए तुम कोशिश करो। तुम सब कड़पे वाले हैं, तुमको मिसाल देने की कोई ज़रूरत नहीं। हजरत जानते थे बर्ख कड़पावी, जानते नहीं हजरत? जानते नहीं? हाँ, बर्ख कड़पावी करके एक शायर गुजरे ही, वो सिर्फ कड़पा तक नहीं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान इंटरनेशनल शायर थे। उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद हाफिज कुरान बने। क्या होने के बाद?
रिटायर्ड होने का कब? 60 साल की उम्र में। 60 साल के बाद हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान को तो देखे नहीं सर का पढ़ने का सीख लिए, उतनी बड़ी उम्र होने के बाद वो सीखे ही। मेरे माँ बहनों, हम अपने आप को बुज़दिल नहीं बनाना। और जरा जने क्या बोलती है, हम सब के बहन फातिमा ज़हरा 12 पैबंद वाले कपड़े पहनते थे, जिस्म छुपाया करते थे। 12 पैबंद, अरे जिस्म के ऊपर पैबंद लगते थे, लेकिन जिस्म को छुपाकर बाहया बा किरदार जिंदगी गुजार कर गए। इसीलिए उनकी इज्जत दुनिया में नहीं, आखिरत में भी इज्जत है उनकी, आखिरत में भी उनकी इज्जत है। कितना बड़ा मर्तबा उनका, फातिमा ज़हरा का मर्तबा कितना ऊंचा है। मेरे माँ बहनों, पुल सिरात पर तो सबको गुजरना है। अल्लाह मुझे और आपको भी आसानी से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। पुल सिरात पे गुजरने के वक्त पर सब गुजरते होंगे, सब गुजरते होंगे। अचानक आवाज आएगी, वो आवाज देने वाला फरिश्ता नहीं, नबी नहीं, सहाबी नहीं, वली नहीं, वो आवाज देने वाला खुद अल्लाह होता है। ओ नबियो, ओ सहाबियो, ओ वलियो, सब तुम्हारे अपने नजरों को नीचे कर लो। अब मेरे नबी की लाडली बेटी फातिमा गुजरने वाली है। मेरे माँ बहनों, वो इज्जत क्यों वहां मिली उनको? आज दुनिया के अंदर वो जिस्म को छुपाकर बाहया बा किरदार बनने की वजह से अल्लाह पाक ने वो मर्तबा दिया है। मेरे माँ बहनों, हम गरीब हैं, हम तंगदस्त ही समझ कर क्या है, बेहया हरगिज नहीं बनना चाहिए। क्या है, आलतू फालतू जुबान से बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे माँ बहनों, अपनी इज्जत का ख्याल रखो। दुनिया चंद दिन की है, जैसे भी हो गुजर जाएगी। गैरों को घरों में आने नहीं देना। आज ये बीमारी बहुत होगी फाइनेंस को लेने का, फाइनेंस को लेने की बीमारी बहुत होगी। बीड़ियां लपटने वाली भी ले रही है, कूली मजदूरी करने वाली भी ले रही है। देने वाला कौन? अधेड़ उम्र का गैर आकर दे रहा है, नोटबुक पे लिख के जा रहा है। घर के मर्द नहीं, घर के अंदर वो आ रहा है। तुम बड़े अच्छे अंदाज से उसका इस्तेमाल कर रही। बैठो, क्या होना, ठंडा होना, गर्म होना। मेरे माँ बहनों, शर्म करो, शर्म करो। हम नबी के क्या है, आशिक हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। कभी किसी गैर को आंखों से नहीं देखेंगे, कभी किसी गैर को अपने घर में नहीं बुलाएंगे। अरे मामला तुम्हारा चल रहा है लेन देन का, चौकट से बाहर उसको रखकर खत्म कर दो। वो होने के बाद अल्लाह से मांगो, अल्लाह इसे गायब से तुम्हें रिस्क देगा, वो हलाल रिस्क देगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे माओ बहनों, तुमको क्या है, इस तरह दूसरों के मोहताज नहीं बनना कहकर ही क्या है, ऐसे सोसाइटियां कायम कर कर तुमको अनाज माहाना भी दिया जा रहा है। देते ही या नहीं? ठंडे दिल से तुम्हें सोचो मां, आधे से ज्यादा आदमी इसमें फाइनेंस को लेने वाले ही नहीं है। शाम को की, सुबह को की गाड़ी में आता, आकर क्या करता, घर में अगर तुम्हें क्या है, डायरेक्ट घर में घुस जाता। हाँ, अल्लाह तुम्हारी हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे माँ बहनों को फाइनेंस में हराम है, हराम है, सूद है, सूद है। अरे 100 रुपये का सूद तो इस वारम में ले रहा है, अगले वारम तक 200 का सूद हो जाता। अरे सूद में ढपते ढसते उन डूब कर मर जाओगे, कभी तुम उससे बच नहीं सकोगे। इसीलिए अल्लाह से तुम मदद मांगो, तुम्हारी जो भी जरूरत है अल्लाह से गिड़गिड़ाओ। 2 रकात नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज की आदत डालो। मेरे माओ बहनों, नमाज की आदत डालो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज किसे देने का, किसके आवाज से? ईसाइयों के आवाज से, यहूदियों के आवाज से, मुसलमानों के आवाज से? किसके आवाज से? बोलो, बोलो, जोर से बोलो। मुसलमानों के वास्ते अजान दी जाती है। अब वो यहूदी भी नमाज नहीं पढ़ा, ईसा भी नहीं पढ़ा, अब मुसलमान भी नहीं पढ़े, तो उनमें हमारे में क्या फर्क है? उनमें हमारे में क्या फर्क है? 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। पढ़ेंगे मेरे माँ बहनों? बहरहाल रमजान का एक हिस्सा तो गुजर गया और 2 हिस्से बाकी है। जो माँ बहनें रोजा नहीं हैं, हिम्मत कर कर सहरी करो, हिम्मत करके सहरी करो। अरे बड़े बड़े बलाएं मुसीबतें दूर करने के खातिर पहले तो ऑपरेशन ऑपरेशन बोलते थे, अब बड़े बड़े डॉक्टर ही ना गैरान क्या बोलते हैं, रोजे रखो अच्छे हो जाती है, रोजे रखो अच्छे हो जाती है। तो तुम्हें क्या, आजमा कर देख लो, आजमा कर देख लो। कल ही सुबह में सहरी करो, इंशाअल्लाह रमजान जाने से पहले पहले गुर्बत भी खत्म, बीमारी भी खत्म, परेशानी भी खत्म, खुशहाल ही खुशहाली तुम्हारे घर आएगी। बस अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे माँ बहनों, आखिर में मैं कहता हूँ तमाम औरतों को 4 दीवारी में रहकर 4 काम करो। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे। सबसे अव्वल क्या है, 4 दीवारी में रहते हुए अजान होती फौरन नमाज पढ़ो। पढ़ेंगे, फौरन नमाज पढ़ेंगे। मेरे माँ बहनों, फजर के कितने रकात फर्ज? 2 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत। जोहर के 4 रकात फर्ज,
ہاں پھر سنت کے تحت پڑھتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے. عصر کے 4 رکعت فرض، مغرب کے 3 رکعت فرض، عشاء کے 4 رکعت فرض، 3 رکعت واجب. یہ نمازیں برابر پابندی سے پڑھو، پابندی سے پڑھو. تم پڑھو گے تو تمہارے بچے تم کو دیکھ کر سجدہ کریں گے، وہ بھی کیا ہے مصلی پہ آنے والے بنیں گے. 4 دیواری میں پہلا کام نماز پڑھنا، دوسرا کام کیا ہے شوہر کی مال کی حفاظت کرنا، تیسرا کام رمضان آئے تو کیا کرنا روزے رکھنا، چوتھا کام اپنی عزت کا خیال کرنا، اپنی عزت کا خیال کرنا. ننگے سر کبھی باہر نہیں آنا، ننگے سر کبھی عورتوں مردوانوں سے آ کر بات کرنا نہیں. آج کیا تو گوشہ کرتے ہیں سو ہمارے ساتھ ماں بادشاہ یہ داڑھی ٹوپی اس والے سے گوشہ کرتے ہیں سو دوسرے کس سے بھی گوشہ کرتے نہیں ہیں. کئی کو تو انہیں بھی ہمارا سگا چھیلے ہو گئے. ہاں نہیں میرے ماں بہنوں، مرد ہی ہے سب سے گوشہ کرنا چاہیے، چاہے وہ غیر بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دھوبی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پھول والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گیس سلنڈر لانے والا کیوں نہ ہو، ہر آدمی مرد ہے سب سے گوشہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام یاد رکھے، اذان سنتے ہی نماز پڑھو، دوسرا کام رمضان آئے تو روزے رکھو، تیسرا کام مال یعنی شوہر کے پیسوں کی اس کے مال کی حفاظت کرو، چوتھا کام خود اپنی عصمت اپنے جسم کی حفاظت کرو. اللہ کرے کہ اللہ پاک یہ 4 کام کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، رمضان کے ادب و احترام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب مل کر ذرا کلمہ پڑھو، میں کلمہ پڑھا تمہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرے ماں بہنوں، اناج دینے میں جو ساتھ دے رہے ہیں ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا ہے، ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کے نبی علی اللہ کہہ رہے تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اضافہ کروں گا. اسی طرح سے نواب سید نذیر صاحب اور ان کے اہلیہ کے لیے، سید جعفر حسین صاحب اور ان کے اہلیہ کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے رشتہ دار جتنے بھی اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جتنے دنیا سے چلے گئے سب کے ہمارے تمہارے ان کے سب کے جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا نام؟ خاص کر کے یہ کمیٹی میں ویلفیئر سوسائٹی میں کام کرنے والے باشا مودین بھائی انتقال ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرو. اللہ ان کے وارثین کی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ یا الامداد ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے غرباء کو جو اناج پہنچایا جا رہا ہے، یا اللہ استقامت کے ساتھ پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس میں لوگ جڑ کر جم کر ان کی ضروریات کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. نظر بد سے تو حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے ماں بہنیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے ضروریات کو آپ خوب جانتے ہیں، سب کے ضرورتوں کو اپنے فضل سے تو پورا فرما. یا اللہ بیمار ہو تو صحت عطا فرما، قرض دار ہو تو قرض کی ادائیگی کی شکلیں عطا فرما، بے نمازی ہو تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بے سایہ ہو تو رحمت کا سایہ عطا فرما، بے اولاد ہو تو فرما بردار اولاد عطا فرما. یا اللہ غریبی بہت مفلسی بہت اللہ پریشانی والی چیز ہے، غربت کو دور کرنے کے خاطر معلوم نہیں کدھر کدھر بھاگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو بھاگنے سے حفاظت فرما، تو اپنے غیب سے اللہ ہم سب کے ضرورتوں کو اپنے فضل سے تو پورا فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں بھی کلام اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بچے بچیوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان کے گھروں میں بھی اللہ علماء حفاظ کو پیدا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما.
یا رب ذل جلال اس سوسائٹی کے ذمہ دار دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے جان مال اعمال میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی پڑھائی میں ترقی عطا فرما، جو پڑھ چکے ہیں رزق کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آج یہ لے رہے ہیں، یا اللہ یہاں بیٹھ کر جتنے مائیں لے رہے ہیں، یا اللہ آگے چل کر ان کو دینے والا بنا دے، یا اللہ آگے چل کر ان کو دینے والا بنا دے، ہمیشہ لینے والے ہی نہیں دینے کی بھی تو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے ضروریات کو اپنے فضل سے تو پورا فرما۔ یا اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہی میرے مالک الملک، اے اللہ ہم سب بھیک مانگتے ہیں، عرب ملکوں کے اندر چین و سکون عطا فرما، لڑائی جھگڑے سے تو حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے تو حفاظت فرما۔ یا اللہ اسرائیل خبیث سب کا دشمن بن کر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان کرتے چل رہا ہے، یا اللہ اس کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ اس کے شر سے سب کی حفاظت فرما، اس کے ظلم سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ نیلا کنڈراؤ پہ جمرت سندھ غوثیہ بیگم حیدر نگر، غوثیہ بیگم حیدر نگر، گلاب جان ندی کوٹ، گلاب جان ندی کوٹ، شیخ روحانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کا، جتنی بھی تعریف کرو اللہ تعالیٰ کی، تمام زندگی بھر کم پڑ جاتی زندگی، اتنی تعریف کے علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات 11واں روزہ ہے ماہ رمضان کا، تاریخ اگر 1 تاریخ 3واں مہینہ 2026 ہے۔ اللہ کے نیک بندے نے سید ظافر حسین نے یہ سوسائٹی کا راشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ دیکھو والو با دیکھو دالو کیا کرتے وہ، دیکھو دالو کیا کرتے وہ، اور اس میں آ کر یہ جو راشن کا انتظام کرتے ہیں، کتنے 14 قسم بیٹا ماں ہیں، ذرا سامنے لگا ہوا، ذرا سامنے لگا، ذرا ہاں کرو، 14 قسم بیٹا ماں ہیں، پورے آئٹم پورے ہیں 14 کی صبح چاول کے ساتھ، چلو دال ہے، املی، پام آئل، گھیوں کا آٹا، شکر، سیمیاں، گھی کا پیکٹ، مرچی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور کاجو، چاول، یہ سب میں 14 آئٹم ہوتی ہیں۔ 14 آئٹم بھی ایک سے ورسے ڈال کر سب اللہ تعالیٰ اللہ چلا رہا ہے۔ الحمدللہ جو بھی لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں، تعاون کرنے کی کوشش کرو۔ زکوٰۃ صدقہ سے سوسائٹی چلتی آ رہی ہے، اتنے برسوں 13 سال سے چلنے کی سوسائٹی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ظالمانہ ظلم کرتے ہیں۔ کون بہنوں، ہماری ایمان والی بہنیں، کیا خوبصورت ہے ان کا، کیا بھی خوبصورت ہے ان کا، بیوہ ہو گئیں، غریب بچیاں بیوہ ہو گئیں، یتیم بچے ہو گئے، ان کو آگے راشن کا انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دروازہ مطلب 100 دروازہ کھولتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الرحمن ادارہ کرتا ہے کام پورا ہے، چاول ڈالنا، پامال دینا، راشن دینا، ڈیلی کھانا کھلانا، ایمبولینس چلانا، مدرسہ چلانا، ساتھ ساتھ یہ غریب بچی نکاح کرنا، غریب بچی کفن دفن کرنا، اسپتال چلانا، آسرم دوائیں دینا، کتنے بڑے کام ہوتے ہیں۔ دیکھو اتنے بڑے کام، اب دیکھو کہ اللہ کے نیک بندے نے اس کا 30 کے 25 40 5 کے چاول ہو، 50 کے جی 17 5 کے چاول ہو، 50 کے جی چکن ڈال کر اس میں کھانا کھلاتے ہیں۔ بھائی خراب ہمارے بیوہ عورتیں روزہ دیں کہ تو دیکھو کتنا اسکینلیس بھی چاول دیکھو، کتنا پیارا ہے گوشت بھی دیکھو۔ پکانے والے بھی ہمارے احمد بھائی پکاتے سو، پکانے جاتے ہیں، پکاتے احمد بھائی پکاتے سو، ان کا اسسٹنٹ دونوں ہی دیکھو پکانے والے
अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अल्लाह ताला चलाता है, ये चलाने की कोशिश करो, दुआ करो इनके हक़ में। जो भी जो नेक काम करते हैं उसको ज़कात बस निकाल कर मुकम्मल तौर पर देते हैं, सही जगह खर्च होने के लिए देते हैं। सही जब खर्च होता है, कौन भाई इस दौर में कौन किसी पकड़ाने वाले भाई को भान नहीं, भान को भाई नहीं, सब पैसे के पीछे दौड़ते हैं। अब कौन तो कल एक भाई को हजरत मैं शोर गुजरा को महीना भी नहीं आना नहीं मांगा, दो कान चलता हजरत में छोटे बच्चे वाली, मेरा मर्द ऑटो डालता था, कोसा के जरिया था, अल्लाह की मर्जी एक आगे हार्ट आ गया, इंतकाल होगा, तो क्या भी वो भाई को देना गलत है, नहीं देना का बोलो जरा देखेंगे, नहीं देना का तो अल्लाह देता है, इससे नेक बंदे को देने से अल्लाह के फंसी अल्लाह तबारा नेक दिखाता है, अल्लाह तबारा इसमें दिखाते हैं, हर महीना दिखाता हूँ मैं किसे क्या देती हैं, किसे क्या देती हैं, तो फेसबुक के जरिए की वो उसके जरिए से मैं दिखा देता हूँ। दुनिया सौ बुलंद है, मैं दुनिया के ऊपर रखता नहीं, मैं अल्लाह से डरने वाला, मैं सौ बातें मतलब सुनने वाला भी नहीं, मैं हकीकत सुनाता हूँ मैं। अब कौन तो मर गया तो कफन दफन करते हैं, कफन दफन मेरे पास रिकॉर्ड में आता, तब से मर्द को फोटो उठा फ्यूज भी रखता नहीं, मैं रिकॉर्ड में रख ले खुद कितने में दफन करी, कपड़े से मिशना कितने दी, ग्राइंडर कितने दी, कितने ग्राइंडर दी, कितने ढकलने गाड़ियाँ दी, किसे आती हैं उसमें। हमारे जो कमज़ोर लोगों को जिसका सहारा नहीं है उनको भाड़े के लेके चलाते हैं, ऐसे लोगों को निकालिए, ऐसे भी अल्लाह से इंतज़ाम करता आ रहा है। अल्लाह से दुआ करो, इसमें बड़े पैमाने पर अल्लाह अभी बहुत कुछ हो सके, ये नहीं भाई आराम सूटी को अंगना करते एक खुड़े को तो क्या तुम्हें करे हो, तुम्हें कितना अंगना कर देंगे अल्लाह तबारा उतना बढ़ाता सोसाइटी को, अंगना कितना कर देंगे उतना सोसाइटी का बढ़ाता सोसाइटी का अल्लाह तबारा। देखो कितनी फिक्र से देखो काम होता है। देखो अब बच्ची है, अब चलते हैं लंगड़ी बच्ची, उसकी बच्ची का बखार आ गई, कौन पकड़ाते हैं, रात के 11 बजे बाटा चढ़ते हैं अस्पताल में, बहुत प्राइवेट अस्पताल में गए तो प्राइवेट अस्पताल में कौन भी करने का काम पूरे से कहाँ से कहते वैसे करा ले को ये कपड़ा दे फैला दिया, कपड़ा दे भले कपड़ा लगा दिया, उसमें आँख ने कहा अल्लाह फंसी को चलाता अल्लाह तबारा ताला चलाने से भी दुआ करो है भाई, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। तो जो भी लोग इसमें देते हैं ज़कात सदक़े के पैसे जो भी पैसे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो काम होता है, अल्लाह के रहमत से काम होता है। दुआ करो, इतने बड़े पैमाने पर अल्लाह काम करते हैं, काम करे तो दुआ करो। मैं भी गच्चू बैठा तो घर में बैठा, तुम बैठ गया तो मैं भी मुझे क्या जरूरत है, मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे पूछो नहीं भाई बेवा और तो करना करो तुम्हें, मुझे क्या हो सोसाइटी के जरिए से करते हैं इसमें इतने सालों से, सौ बातें बोलती हैं, अल्लाह से डरता हमें, बोले तो बोले ना बोलते क्या काम है उनको, ज़बान को हड्डी नहीं, ग़ीबत करने का मुझ है। अब कुरान की आयत खुद बोलती है सूरह हुमज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आयत है बड़ी ख़राबी है, पीठ पीछे ग़ीबत करने चाड़ी चुगली करने वाले को, तो चाड़ी चुगली करते हैं सो, और जितने भाई को राशन लग जाते हैं क्या उनके आते भी पैसे देते हैं, कितने बरसों से ले जाते हैं राशन, कितना इलाज होता है घर का, उसके अंदर 5,50,000 रुपये हुए। अब ये महीना 1 तारीख होगी, आज ये महीना पर भी कितना है, ये सब करने कौन भी करने का, हमने कहीं को छोड़ा लो वो तो कर को। अब देखो ईरान के ऊपर देखो वो बड़े में आसपीर मुल्का किसके इस्लामिक मुल्का किसे मारते हैं उन्होंने, फ़लस्तीन के आदमियों को, नौजवान बच्चियों को, छोटे दूध की बच्चियों को, बूढ़ों को, औरतों को सब जान से मार, लाखों आदमी मार डाले, कौन तो भी कहीं मारते हैं, पूछा हाँ आदमिया का भी लोग वो अब बड़े आदमी पूछ से खाते रहो, बड़े आदमी मारते हैं, मार डाले शहीद कर डाले बड़े आदमी को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे जालिमा है, एक तरफ एक नहीं है हमें सभी, एक नईस नहीं हमें सभी, सब मिलकर है वो एक दिन मार डाली, और सदा हुसैन गया, कलंगड़ आफिका सब चल गए, अनवर सादा चल गए, सब चल गए, एक भाई एक चलती सब चल जाती है। हमारी यूनिटी नहीं है हमारे, इसमें शर्म आ रहा हमको ये काम कर इसका अपना को करने दे सका, शर्म के सका इंफॉर्मेशन देखो, जालिमा आप अच्छे आदमी को इंफॉर्मेशन देखो है, कहा है घर में मीटिंग चलती है तो शेयर करता नहीं, अल्लाह की मर्जी लो, अल्लाह ताला उनको वक्त हाथों था, फिर भी अब तो भी होश में आ जाओ, अब तो भी होशियार हो जाओ, नहीं होशियार होता नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिफाज़त करे। हज़रत या रहमत सोसाइटी हर हमेशा खिदमत खल्क़ के लिए काम करती है, अल्लाह के नेक बंदे से चलाते हैं, अल्लाह के अच्छे अखलाक के वाले बंदे से सब काम करते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी क्या जो ग़ीबत ना करने वाले, ग़ीबत चंदा जाता नहीं, ग़ीबत करता